Hello everyone, a warm welcome to Grade Up. I am Niharika Pinto and स्वागत है आप सबका इस बहुत ही special live session में. I can see many people have already joined the session. Do share it with your friends. बुलाइए अपने दोस्तों को, share कीजिए, WhatsApp पे भेजिए, call कीजिए. Nobody should be missing out on the fun today. We have a lot of interesting things lined up for you. For those जो आज Grade Up के platform पे पहली बार आए हैं, Grade Up helps more than 2 crore exam aspirants to prepare for various competitive exams like banking, SSC, government jobs, GATE, teaching, and many more. We help students prepare live from the comfort of their home. आप घर बैठे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी तैयारी कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड लाइव कोर्सेज के द्वारा. In this session today, we will be joined by a very special guest. Bollywood superstar and youth icon who rose to fame with Pyar Ka Panchnama and won our hearts by giving us Sonu Ke Titu Ki Sweetie and continued to give super hit blockbusters. Please join me in welcoming the Bollywood youth icon, self-made superstar, rant king, the one and only Kartik Aaryan. So hi Kartik, welcome to Grade Up. ये लाइव आ गया हूँ ना मैं सॉरी सो Yes, Kartik, you are live. hi thank you so much and I'm so excited to be here and yeah now I can see myself sorry मैं देख नहीं पा रहा था but yeah thank you The lockdown, your chat show, which is Koki Puchega, has gained a lot of popularity. You have interviewed many people who are COVID warriors, right from doctors to the police force to the one of the first COVID patients. So what was your inspiration to do something like this? I think this whole during this pandemic or the lockdown period this side of me is more visible. I think this whole lockdown period has been really productive for me. In fact, be it with anything, be it with the monologue or Koki Puchega series or work that I've been doing, and I'm really happy that. So what happened was I was just we all were confused at one point. What's going to happen and what is happening and where the world is going and what are we supposed to do? And thankfully, I have a great social media following. And a lot of people, a lot of fans are there. So मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे एक awareness फैलाना बहुत जरूरी है लोगों में. And that's how Koki Puchega generated. कि awareness about what's happening and what we should be doing during lockdown. We should not be going out. We should, it's not some kind of bravery to go out at this point of time. It's stupidity all the more. So I think it generated from there. And it became a series and people started watching all the episodes that we were creating and I'm glad that a lot of people then texted me saying that they were उनको बहुत सारी चीजें पता लगी जो वो सोच जो उनके सवाल होते थे बेसिकली वही हम लोग उसमें पूछते थे एंड कहीं ना कहीं उससे उनको जवाब मिल रहे थे. सो वो जनरेट बस इससे हुआ कि ये प्लेटफॉर्म को चाहे वो इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो किसी तरीके से अवेयरनेस के लिए यूज किया जाए एंड कोकी पूछेगा making that awareness program. So Kartik, you come from Gwalior, from a very simple and humble background. A lot of our students also come from tier 2, tier 3 cities, and you made it big here in Bombay in Bollywood. Share with us some memories or some incidents that happened with you during your school time. As you said, I am from Gwalior, and my family, my parents, my sister, all of us were in Gwalior before, and I used to watch a lot of movies. So I think कहीं ना कहीं मुझे वो एक्टिंग का कीड़ा मूवीज देख के बहुत लगा और वो देख के ये हमेशा लगता था बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ जनरली लाइफ में. तो वो देख के मुझे लगता था जब ये एक्टर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ एंड स्टफ लाइक दैट. सो वो एक बहुत बचपने से स्टार्ट हुआ था एंड मैंने कभी पेरेंट्स को लेकिन वहाँ पे बताया नहीं. ये एक बहुत वैसी चीज है जिसमें मैंने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स कॉलेजेस के वो कॉलेजेस के एग्जाम्स दिए जो बॉम्बे में थे या नवी मुंबई में या पूना, सो दैट आई कुड लीव ग्वालियर एंड
बी बेस्ड इन मुंबई, जहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, एक्टिंग भी इंडस्ट्री है. सो दैट इज वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज. सो 12th 11th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो जब भी मैंने एग्जाम्स, सारे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, तो मैंने पर्पसली सारे ऐसे कॉलेजेस के एग्जाम दिए, जिनमें से एक कॉलेज था डीवाई पाटिल, जो कि नवी मुंबई में. एंड आई क्लियर्ड दैट एग्जाम, नवी मुंबई का, डीवाई पाटिल का. एंड फाइनली आई डिसाइडेड, मतलब कि मुझे इसी कॉलेज में, और भी 2-3 कॉलेजेस के एग्जाम मेरे क्लियर हो गए थे, बट दिस वाज द वन that I was just after my parents कि मुझे इधर ही जाना है, इधर ही जाना है. And then finally this thing happened that मैं नवी मुंबई पहुंचा, वहाँ ऑडिशंस ढूंढना चालू किया. And but it was a bit difficult because being from Gwalior to मैं एक्टिंग लाइन की बात करूँगा, क्योंकि मैं उस दिशा में मैं इस प्रोफेशन में हूँ. मेरे लिए ये डिफिकल्ट था, क्योंकि वहाँ पे या तो इंजीनियर या डॉक्टर बनने का ही मैक्सिमम सब लोग एक सपना रखते हैं, विच इज ग्रेट. मेरी भी फैमिली में सबको चाहिए था कि मैं या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, बट कहीं ना कहीं मुझे वो एक्टर बनना था, एंड इस इंडस्ट्री का हिस्सा होना था. तो वो मैं बता नहीं पाता था अपने पेरेंट्स को, इसीलिए क्योंकि वहाँ सबके लिए एक इंडस्ट्री बहुत दूर है, बॉम्बे बहुत दूर है. And to really think of an idea of becoming an actor or anything associated with the industry was something जो कोई भी बिलीव नहीं करता. तो इसलिए मैंने कभी वो ऐसा कभी बताया नहीं. मैं छुप छुप के, मतलब फिल्में भी देखने थिएटर जाता था, तो कई बार मैं ये बहुत गलत एग्जांपल मैं ग्रेड अप पे दे रहा हूँ, बट मैं ट्यूशंस को बंक करके जाता था और फिल्म्स देखने जाता था. वहाँ ट्यूशंस बहुत होती थी मेरी कॉलेज में, तो एंट्रेंस एग्जाम्स की. बट बट या बट आई हैड फन. मतलब आई वाज रियली हैप्पी जब मैं ग्वालियर में था, फिर मैं नवी मुंबई में आया, नाउ इन मुंबई. As you mentioned that it was obviously difficult for you to tell your parents as well. Yeah. Both your parents are doctors, so you come जी. from your both parents being doctors. So coming to Bollywood, not being from the industry, definitely it must have been challenging not having someone in the industry. So who was your inspiration, or who was your role model at that point of time, or is currently, who inspires you? ऑफ कोर्स, मतलब मैं बहुत क्लीशे आंसर दूंगा, लेकिन यही आंसर है मेरा. माय मॉम हैज रियली इंस्पायर्ड मी. शी इज समवन जिनके मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है उनका लाइफ में, और इस तरीके से उन्होंने अपनी पहचान एक बनाई अपनी फील्ड पे. एंड मेरे मुझसे या मेरी बहन को कभी भी उन्होंने ये पता नहीं लगने दिया कि उनके कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में. So I've always been inspired by her journey and the way she's always been, and the way she's taken care of the whole family. So she's been my inspiration all throughout. And irony is, मैंने उन्हीं को कभी नहीं बताया मेरा ड्रीम था बनने का, एक्टर बनने का. फाइनली मुझे जब एक फिल्म का मैंने ऑडिशन फाइनली क्रैक किया, तब जाके मैंने उन्हें बताया था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता था, लगता नहीं था कि वो मुझ पे बिलीव करेंगे इतना, या उनको लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ पता नहीं था, कोई किसी को जानता नहीं था. तो इस इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बनोगे, कहाँ से जाओगे. तो वो एक पेरेंट्स को हमेशा डर रहता है कि जहाँ कुछ भी नहीं पता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर इट वाज ऑलवेज, जब बाद में मैंने बात करी और ये सब चीजें, कि इट वाज ऑलवेज लाइक इट्स लाइक अ गैम्बल. एवरी फ्राइडे आपका एक, या तो आप जीतते हो या हारते हो, इट्स लाइक दैट. तो वो किसी के हाथ में नहीं होता. एंड so yeah, I never told her that, but she's always been my role model and still is. Was she a strict parent while growing up? What? Oh, strict parent? Strict parent, yeah. हाँ, बहुत मैंने मार खाई है मम्मी से, और काफी, मतलब वो तो आई डोंट थिंक सो वो स्ट्रिक्ट भी, मतलब ऐसा नहीं है. वो कभी स्ट्रिक्ट है, कभी नहीं है. कैसे हम लोग सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बहुत सिचुएशनल है कि कब वो खुश हो जाएंगी, कब वो गुस्सा हो जाएंगी. बट ऑल इन ऑल आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी मार ने मुझे बहुत बनाया है हम्बल. तो अभी मेरे को कोई भी ऐसा कोई बुरा बोलता है, कुछ करता है, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है. बचपन में मार खानी बहुत जरूरी होती है कई बार गलत कामों के लिए.
So I think वो मेरी मम्मी ने fulfill किया है. In fact, आपके social media पे your mom is part of many of your videos. You had your Mother's Day video. Even the Koki Yeah. intro was when your mom was calling you on the back, your pet name Koki. Yeah. Seen her also in your part of your success as well. Because she named me Koki. Yeah. No, because of the fact that when you had that show ka intro, your mom calls you from the back, and that's how the name Exactly. came. Koki. Yeah. There was a teaser. Where she was. It was actually not planned also. वो मैं बस जनरली मैं कुछ मेरा रिकॉर्डिंग ऑन था और मैं फोन को सेटअप कर रहा था और मम्मी ने वहां से चिल्ला दिया था कि कोकी क्या कर रहा है. मैंने तो आई सेड इंटरव्यू ले रहा हूँ. इंटरव्यू ले रहा है. तो शी डिडंट नो देन, क्योंकि तब वो ऐसा कोकी पूछेगा कुछ आया नहीं था. तो शी जस्ट रैंडमली सेड इट कि इंटरव्यू ले रहा है या दे रहा है. and it got recorded, so I posted it as a teaser. And everybody has been they've showered so much love and praise. I think it's all because of the kind of things that are being shared on it, that is being talked about, and these things are the need of the hour, and so कहीं ना कहीं वो awareness बहुत जरूरी थी. So yeah, I think and मम्मी के साथ of course she has I don't know, उनकी कुछ एक अलग सी एक पर्सनालिटी है जो अच्छी लगती है, एक लवेबल पर्सनालिटी. सो आई रियली समटाइम्स मैं काफी यूज कर लेता हूँ अपनी मम्मी का कभी कभी. माँ तो आई होती है. हाँ ना, उनको फर्क नहीं पड़ता. इज हैप्पी ओनली. So Karthik, you came to Bombay and you were studying biotech engineering. At the same time, in your third and fourth year, you were also giving auditions, going for acting classes. So how did you manage that time in your life? Many of our students also prepare for multiple exams at the same time. Tell us something about that phase in your life. I think I always had a timetable. I always followed a routine, जिसमें कि अगर मैं इस हफ्ते ये करने वाला हूँ तो I had that chart, the whole chart which a lot of students have, and मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह ये सब चार्ट बनाता था या टाइम टेबल बनाता था. मेरी मम्मी बचपन से मेरे लिए टाइम टेबल ये बना के रखती थी कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, 6 बजे लंच बन जाएगा, 7 बजे तक बस आ जाएगी, एंड देन ऑटो आ जाएगा, देन विल गो टू द व्हाटएवर स्कूल. तो वो जो एक रूटीन वैसे बचपन में था, वैसे ही स्कूल कॉलेज में भी एक ये टाइम टेबल था जिसमें कॉलेज जाने का तो ऑफ कोर्स था ही, लेकिन उसके अलावा ट्यूशंस, उसके अलावा अगर ट्रैवलिंग करनी है तो उसमें कितना टाइम जाना है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, वहाँ पे ऑडिशन में कितना टाइम, फिर वापस आने में. जिस दिन मेरे ऑडिशन होते थे उस दिन ऑफ कोर्स मैं कॉलेज नहीं जा पाता था, बिकॉज वो पूरा दिन मेरा उसी में जाता था ऑडिशनिंग के लिए. सो मैं इस तरीके से स्पेस आउट करता था कि कहीं ना कहीं मैं एक ये बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए या मेरे लिए भी या एक वर्किंग इंसान के लिए भी कि रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है. आई थिंक वो आपको बहुत आपके गोल्स की तरफ लेके जाता है कहीं ना कहीं. आई यूज टू मैं सेल्फ एक मेरी क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन मैं डांस का एक अलग से 1 घंटा निकाल के रखता था, या फिर उस टाइम मैं मार्शल आर्ट MMA करता था कॉलेज में, तो उसके लिए अलग से एक निकाल के रखता था. तो वो रोज के रूटीन में मेरा था कि पढ़ाई इतने टाइम करनी है, थोड़ी सी पढ़ाई का बहुत कम होता था. आई एम सो सॉरी, बट मेरा पूरा एक एक्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा वो था एफर्ट. सो ऑल आई कैन से जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं उसके लिए उसके हिसाब से एक टाइम टेबल या रूटीन रखना बहुत जरूरी होता है. जैसे कि मैं अगर एक्टर बनना चाहता था तो मेरा एक फिक्स टाइम था कि 1.5 घंटा मैं डांस करूंगा, 1 घंटा मैं MMA करूंगा शायद से, या फिर मैं 2 घंटा मैं एक ऐसा कोई सीन पढ़ के रीड करने की डिक्शन अपनी ठीक करने की कोशिश करता था. और सो आई हैड दीज ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. मैं देन वहां से जो पढ़ाई का अगर मैं करूँ तो पढ़ाई का जब एग्जाम्स के लिए मेरे पास एक अलग से रूटीन रहता था कि मैं कम घंटे सोता था, ऐसा कुछ होता था. एंड so yeah, there are lots and lots of things, but you need to have a routine. That is what I believe in. So Karthik, you are one of the most loved Bollywood superstars and youth icon in our time. And since True. you have joined this session, this special session for us,
Our Yeah. students have really been waiting for the surprise that you are going to reveal here. So बता जी दो, बता देते हैं, पक्का पूरी बता। तरह से बता। नहीं, आप श्योर नहीं हो क्या? मैं तो श्योर हूँ, आप श्योर हो? मैं श्योर हूँ, पक्का पक्का बता देते ग्रेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस आप लोगों ने कार्तिक आर्यन को इतना सारा प्यार भेजा है अपने सवालों के थ्रू, अपने क्वेरीज के थ्रू, and you all have been waiting since so many days that we are going to reveal something, a super surprise for you all. So we at GradeUp thought कि कार्तिक को एक गेस्ट की जगह GradeUp का फैमिली मेंबर बना दें. So we are officially welcoming Kartik Aryan as the brand ambassador of GradeUp. So Kartik, officially welcome to the GradeUp family. Yeah, Niharika, I'm also really excited to be a part of Grade Up. What was really exciting for me was कि आप लोग, I mean हम लोग Grade Up पे जो भी कर रहे हैं, that is so good. It's amazing. I mean इंडिया के कोने कोने से students Grade Up के साथ online जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे पास some of the best teachers and mentors हैं, जो कि काफी फोकस तरीके से एग्जाम की तैयारियां कराते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट में, यू नो, so which is great, which is a great combination. And but that's not all. I have another surprise gift for our students. तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, GradeUp is launching GradeUp Super today. Niharika, can you tell us more on what will students set up and get in GradeUp Super? Great. Yes, we are launching. We have officially launched GradeUp Super. GradeUp Super gives you unlimited access for your unlimited tayari. आप GradeUp Super से you get access to all structured live courses and mock tests with complete resolution of all your doubts. You prepare from some of India's best faculty with a day-wise study plan. You also get performance analysis and report card and many more things. And not only that, by launching it today, we are also giving you 2x validity and additional 20% off. So जो भी इस टाइम ये सेशन देख रहे हैं, सेशन के बाद जरूर जाइए GradeUp ऐप पे एंड सब्सक्राइब टू GradeUp Super. और अगर अभी भी ना समझ में आए तो ये वीडियो देख लो. Yes, Karthik, I'm sure many of our students will be very happy with the launch of GradeUp Super subscription. पिछले कुछ दिनों में हमने एक कॉन्टेस्ट रन करा था and I'm sure आपके पास अब तक उन लकी विनर्स के नाम पहुंच चुके होंगे. So please do the honors and announce who the lucky winners are. So ये मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, और so B Patil from Bengaluru, इनको मिलता है एक स्मार्ट बैंड. Then रेखा चंद्रशेखरन फ्रॉम अहमदाबाद, आपको मिलता है एक मोबाइल फोन. पूजा कुमारी फ्रॉम पटना, आपके लिए है एक लैपटॉप. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, एंड ओवर टू यू निहारिका. Yes, and along with this, many more lucky winners have got a 1-year access to Super subscription, and the winners will now be shown on your screen. So Kartik, currently it's a very difficult time going on for everybody. And a lot of our students are also who were preparing for multiple exams. However, many of the exams have been put on hold. And currently there's no certainty as to what is going to happen next. Some have been preparing for over a year for exams like banking, SSC, or want to become a teacher. So something that you would like to give them as advice, how to cope in this difficult phase, and how would they feel motivated? बेसिकली
कोई सजेशन मैं अपनी तरफ से अगर दे सकता हूँ तो ये कि जैसे हम सब लोग अभी लॉकडाउन में हैं, हम सब लोग किसी ना किसी वजह से डिले हो रहा है लाइफ में हमारे, एंड बट आई थिंक पॉइंट यही है कि सबकी लाइफ पॉज्ड है एक ही उसमें, एंड नाउ यू हैव गॉट एक एक ऐसा टाइम मिला है जिसपे आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हो। सो ये एक पॉजिटिव रहने का टाइम है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी लाने का टाइम नहीं है। जितना पॉजिटिव हो उतना बेटर है। जैसे मैं अगर घर पे हूँ, मैं बी इट विथ माई सोशल मीडिया, बी इट विथ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मोर एज एन एक्टर, कहीं ना कहीं कुछ सीन्स लेकर मैं कुछ प्रिपेयर करता हूँ, रिकॉर्ड करके देखता हूँ कि सही कर रहा हूँ कि नहीं, या कोई हॉबी लेके बैठा हूँ कि गिटार सीख रहा हूँ बजाना। माई सिस्टर, शी इज स्टडीइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट कर रही है, शी इज बीइंग पॉजिटिव, और ज्यादा पढ़ने का टाइम मिल गया तो वो पढ़ाई कर रही है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं सब अपने अपने ऊपर जितना काम करेंगे उतना बेटर होगा, उतनी पॉजिटिविटी रहेगी, rather देन ये लगना कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है घर पे रह के। कहीं ना कहीं आई थिंक हमें सबको ये बहुत अच्छा वक्त मिला है, ये सोचने का भी एक तरीका हो सकता है। एंड लाइफ में मुश्किलें सबके आती हैं, स्ट्रगल सबको करना होता है, डिले चीजें हो जाती हैं, चाहे वो मूवी की शूटिंग हो या मूवी की डेट। मैं हूँ, ग्रेडअप है, इतने सारे टीचर्स हैं, ग्रेडअप गुरुज हैं, और आपके फ्रेंड्स हैं, और अब तो सुपर भी है। तो टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से तैयारी करो और ग्रेडअप सुपर लो। बाकी सब हो जाएगा। बाकी घर बैठो, जूम कॉल करो, दोस्तों से बात करो, बिना मतलब बाहर मत घूमो, लेकिन मौका मिला तो अच्छे से टाइम यूटिलाइज करो और जम के मेहनत करो। आई थिंक इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन आवर वेबसाइट और ऑन यूट्यूब, अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और ग्रेडअप ऐप इंस्टॉल करो, और अपने दोस्तों के भी करवाओ। So thank you so much, Karthik, for joining us for this live session, and we are super excited. अब तो हमें मिलना जुलना लगा ही रहेगा आपके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मिलना जुलना मतलब आफ्टर ये सब ठीक हो जाए तो मैं आप सबको, सब पूरी टीम को मिलूंगा, लेकिन अभी बिल्कुल मिलने की बातें नहीं करते। जूम कॉल पे, जूम कॉल पे मिलेंगे जी। सो गाइस, प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेड अप।